Good morning. On behalf of the Jurist Academy, today our lecture will be based on how to prepare the Himachal Judicial Service exam. Okay? You already know that HPPSC has declared regarding the scheme of the examinations, where it is clearly mentioned that in the first week of the March there will be a preliminary examinations, and the last week there will be a main examinations. Okay, so that's why, because this will be the first exam, even though because the MPPSC has not given the exact date, but since the HPPSC has mentioned the specific dates, so this will be the first exam. Normally, you know that Punjab as well as Haryana has also very soon advertise their post. So that's why, because if you will prepare the HPPSC, then you will very good base during the PCS and HCS and the TGS. Okay, so target this exam first. Okay, beta. Okay, myself Surinder Singh Bhardwaj. I did my law from the Punjab University. Then in '95, I appeared IS with law subject main examinations, and I also cleared this Punjab Judicial Service. I was the topper in written Punjab Judicial Service exam. So that's why I'm telling you what will be the strategy, what will be your strategy to clear this exam. Okay? From Jurist Academy, number of students were selected. Shweta, he is as mentioned in his newspaper, which was published on the Monday, that she was the student of a Jurist Academy. One is Pratik and one Naresh. Number of students were selected from this Jurist Academy. So that's why I will tell you what should be your strategy. Okay? Now we will come to the this first. You know that the scheme of the examination is this. First, there is a preliminary examinations, then there will be a main examinations, then there will be a interviews. Okay? So if you will clear the preliminary examinations, then you will appear in the main. If you will qualify the main, then you will appear in the interviews. Okay? So first your strategy should be, because the time is very limited, you prepare for the main point of view, and also did all the objective type questions, and also prepare for the preliminary examination. This should be your strategy, because you will get only 20 to 30 days for regarding your main examinations. Okay? So that's why you have to be both prepared main as well as the preliminary examinations if you want to clear this, to crack this examination. Now we will come to you that first we will discuss the preliminary examinations. Okay, beta? Now we'll come to this. Preliminary examinations, you write down the subjects. There will be 3 papers of 100 marks. 100 marks के 3 पेपर होंगे. इसमें जो फर्स्ट पेपर होगा, that is paper 1. इसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, that is a CPC. इसमें आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, CPC. सेकंड इज इंडियन एविडेंस एक्ट. थर्ड इज इंडियन स्टैंप एक्ट. फोर्थ वन is HP Courts Act, and the last one is Specific Relief Act. ठीक है, तो इसमें से जो बेटा क्वेश्चंस आएंगे, तो मेरे अगर 50 क्वेश्चंस हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आई एम डिस्कसिंग दिस फ्रॉम द 19 एग्जामिनेशन जो 2019 में हुआ था. As per that, the first 18 questions is come from CPC. ठीक है? Then approximately this 20 questions come from Indian Evidence Act.
and 3 questions come from Indian Stamp Act, and around 3 questions come from the Himachal Pradesh Courts Act, and specific relief acts are approximately around 6 questions. ठीक है, तो ये जो 50 क्वेश्चंस आपने किस सब्जेक्ट्स पे ज्यादा स्ट्रेस करना है, किस पे नहीं करना, सो इट डिटरमिन्स फ्रॉम दिस. ठीक है, सो बेटा इसमें सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है मेजर सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, सो बेटा वी विल स्टार्ट आवर इवनिंग बैच फ्रॉम द 2nd of January, and from the 15th January I will start the CPC subject. ठीक है, because you know that I have already loaded my lectures on, I have already taught IPC, I have already taught this Evidence Act. ठीक है, CRPC is ever going on, and the Muslim law is also going on. I have already taught this Hindu law. ठीक है, from 15th January, ठीक है, myself and Shri A.N. Jindal, who is a former High Court judge, ठीक है, both we will teach you this CPC subjects. ठीक है, why I have teach the CPC, because when I appeared in this judicial service exam, in that CPC papers, number of more than 1000 students at that time appeared. Only in that paper we are the 16 candidates were passed CPC subjects. ठीक है, since I was the top that exams with the CPC, in which the subjects in only 16 was the pass, and we were only qualified 8 students for the main examinations. ठीक है ना, for interview we appeared only 8 students and I was the topper in that. That's why I will teach CPCU. मैं आपको बताऊंगा क्योंकि because CPC evidence and CRP subjects only that teacher can teach you who has a practicing in the district courts or who has a judicial officers, because he know the procedure. ठीक है, since I have served as a judicial officer, I also did a practice as an advocate in district court Sangrur. That's why I will teach you the CPC. ठीक है, now come to the next. And because Shri A.N. Jindal is High Court judge, he has experience of a district courts as a session judge. He has appeared leading advocate, and he has practicing. He is a High Court judge in the Punjab and High Court. He will also teach and guide you regarding this. Okay, okay, beta. Next is this is a 50 questions. So the papers 2. ये बेटा एक दिन में ही एग्जाम में ये 3 पेपर्स होते हैं. ठीक है, जो सेकंड पेपर्स होगा उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेकंड हिंदू लॉ, इंडियन Limitation Act, Transfer of Property Act, and 5th one is HP Urban Rent Controller Act. It is the same जो पंजाब रेंट एक्ट है, it is the same. ठीक है, सो प्रीलिम में बेटा इसके जो है अगेन 50 क्वेश्चंस होंगे, और इसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से सभी के नॉर्मली 10 क्वेश्चंस होते हैं. कंट्रैक्ट एक्ट 10, हिंदू लॉ 10, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 10, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अर्बन रेंट एक्ट. ठीक है, सो ये 5 सब्जेक्ट्स इज इंपॉर्टेंट. तो इसमें से आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे. एंड द थर्ड वन इज थर्ड पेपर, जो पेपर 3, इट्स इंडियन पैनल कोड, CRPC, then negotiable instrument act, 4th HP Excise Act,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इसमें भी बेटा 50 क्वेश्चंस होंगे। हर जो क्वेश्चंस होता है वो 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 300 मार्क्स में से जो आपकी प्रीलिम्स की मेरिट बनती है। और इसमें जो क्लासिफिकेशंस है उसकी क्वेश्चंस की, आईपीसी में 15 क्वेश्चंस, सीआरपीसी में 15 क्वेश्चंस, नेगोशिएबल में 3 क्वेश्चंस और 3 questions from this Himachal Excise Act, or then this 4 question is approximately this wildlife के अंदर, और रिमेनिंग क्वेश्चंस हम जो है इसमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या उसमें आता है। सो बेटा नो वी विल डिस्कस जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू पे कौन कौन से हैं, ठीक है। First, your subject is the CPC. Second, your subject is Indian Evidence Act, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडियन पिनल कोड एंड द CRPC, ठीक है। सो आपने ये बहुत अच्छी तरह करने हैं क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चंस अपना मिस ना हो सके, ठीक है। सो बेटा जो पिछली बारी एग्जाम हुआ था, द प्रीवियस एग्जाम, उसमें प्रीलिम की जो टॉपर था दैट इज 244, ठीक है। और जो सेकंड स्टूडेंट थी, जो सेकंड टॉपर थी प्रीलिम में, शी वाज अवर स्टूडेंट अश्वीर, जिसने 242 मार्क्स की, ठीक है। नो शी इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस मेन एग्जामिनेशंस अभी हुआ, शी इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड शी हैज ओनली 3 मार्क्स उसके जो डीजीएस में भी, 6 to 9 मार्क्स में उसका डीजीएस भी कुड नॉट बी क्लियर। बट बेटा जो इस तरीके से आपको जो प्रीलिम है उस पे ऊपर बाय दिस स्ट्रेटजी यू हैव टू बी, आप उसको अच्छी तरह करो, ठीक है। ये क्लियर होगी प्रीलिम की, ठीक है। नो बेटा अप्रोक्सीमेटली जो कट ऑफ जाती है, ठीक है, दैट इज अराउंड 211 के आसपास। 300 में से अगर आप इफ यू गॉट 211, ठीक है, तो आपने बेटा जो टारगेट है वो 225 का लेके चलना है, ठीक है। सो योर टारगेट शुड बी मिनिमम, सेफ टारगेट इज अराउंड 225, ठीक है। उसमें से क्लियर आपका पूरे चांसेस होते हैं क्लियर होने। आप तो टारगेट तो चाहे 250 का लेके चलो, ठीक है, बट 225 अगर आप है तो इट्स ए सेफ स्कोर इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस, ठीक है। नो बेटे कम टू द मेन में बेटा जो ये कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन इसमें कोई नहीं होता, ठीक है। नो जी के क्वेश्चंस कोई नहीं होता। और एक बेटा और आपने रखना है जो प्रीलिमिनरी के अंदर, ठीक है, कम से कम टोटल अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस यू कैन से 150 के अंदर जो जजमेंट्स पे आते हैं, भी किस जजमेंट में क्या हुआ था, ठीक है। सर वो सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है, नहीं ज्यादा सब, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट्स पूछते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने पूछा था भी जो ललिता कुमारी जजमेंट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कौन से बेंच से किससे इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर कौन सी है, ठीक है, 154 के अंदर, बिकॉज इन ललिता कुमारी केस इट इज मेंशन दैट जो इफ इट इज ऑफेंस इज ए कॉग्निजेबल केस, ठीक है, दिस पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर, ठीक है। सो इस तरीके की वो जजमेंट्स जो है 15 to 20 क्वेश्चंस वो आपके आ जाते हैं, तो आपने जजमेंट्स वाले वो भी अच्छी तरह करें, ठीक है। सो दिस वाज द स्ट्रेटजी। नो कम टू द मेन एग्जामिनेशंस, ठीक है। मेन के अंदर बेटा मेन में बेटा जो यही सब्जेक्ट्स हैं, ये वाला जो पेपर फर्स्ट है, ठीक है, इट्स ए 200 मार्क्स, ठीक है। सब्जेक्ट्स वही हैं, सीपीसी, इंडियन एविडेंस, इंडियन स्टैम्प एक्ट, एचपी कोड एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है। बट मार्क्स जो है वो 200 में है। इट्स ए डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट। इसमें क्या होता है
मेन के अंदर पहले बेटे सेकंड पेपर सब्जेक्ट्स सेम है, इंडियन दिस कंट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ दिस, इट्स 200 मार्क्स। और जो थर्ड पेपर है दैट इज आल्सो 200 मार्क्स। ये तीनों पेपर्स हैं। और देन सो बेटे जो मेन की स्ट्रेटेजी है इसमें आपको 7 to 8 क्वेश्चंस आएंगे, 8 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली। जैसे सपोज फर्स्ट पेपर हो गया, इसमें आपको 8 क्वेश्चंस आए, उसमें से 2 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ठीक है, और रिमेनिंग में से आपने 3 क्वेश्चंस करने, ठीक है। और जो हर क्वेश्चंस होगा उसके देयर आर 4 पार्ट्स अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का एक क्वेश्चंस होगा, ठीक है। सो इसमें आपको 2 चीजें यू हैव टू बी टू नो दैट। फर्स्ट यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है, 40 मार्क्स का एक क्वेश्चंस है, आपके पास 3 आवर्स है, तो आपने एक क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है, हाउ मच टाइम यू विल गिव, फटाफट बताओ। आपने तो एक क्वेश्चंस को कितना टाइम दोगे आप, हैं? अगर 5 क्वेश्चंस हैं, अगर 5 क्वेश्चंस है बेटा, तो आपको जो बेस्ट है वो 35 मिनट्स हम एक क्वेश्चंस को देते हैं लिखते हुए। ये स्ट्रेटजी आपको याद रखनी है, नहीं सम स्टूडेंट्स डिड इट ए बलंडर, दे गिव ए मोर देन 1 आवर्स टू द फर्स्ट क्वेश्चंस, लास्ट में उनका क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होता, ठीक है। तो आपने व्हेनेवर यू अपीयर इन द मेन एग्जामिनेशंस आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। आपने छोड़ दिया, चाहे आप आपके पास टाइम कम है, यू गिव ए 3-4 लाइन कुछ भी लिखो, पर क्वेश्चंस नहीं कभी छोड़ते होते, ठीक है। सो 200 मार्क्स का ये जो क्वेश्चंस है, तो इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो देन फॉर एवरी क्वेश्चंस you will give a time or approximately 35 minutes, ठीक है, 35 मिनट्स आपने एक क्वेश्चंस को टाइम देना है। नॉर्मली क्या होता है, व्हाट व्हेन यू अपीयर इन द एग्जामिनेशंस, हमने भी देखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस, ठीक है, वो लेंथ ही चले जाते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। आपका हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चंस आप देखो, टाइम मैनेजमेंट देखो भी 45 मिनट्स, ठीक है, अगर 45 मिनट्स से कोशिश करो उसको ज्यादा मत जाने दो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देन भी आपका 45 मिनट्स का हो जाएगा। देन आपने ध्यान रखना भी जो नेक्स्ट आपके 3 क्वेश्चंस हैं उसको आपने फिर 30 मार्क्स ही देने, 30 मिनट्स ही देने आपने, फिर आपने उनमें से 4 पार्ट्स करने हैं, ठीक है, इसलिए यू मस्ट मैनेज द टाइम्स, ठीक है। अब सम टाइम द स्टूडेंट्स पूछते हैं भी सर हमें लिखना कितना है, व्हाट विल बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर द राइटिंग्स, ठीक है। एक तो बेटा बेस्ट लिखो, कंटेंट्स अच्छे लिखो, ठीक है, और आप ये सोचे चलो भी मिनिमम एक अगर 40 मार्क्स का क्वेश्चंस है, पहले 40, तो जब भी कोई 40 मार्क्स का क्वेश्चंस मतलब 1, तो हम उसको 35 मिनट्स देते हैं, तो हम उसके मिनिमम जो है अराउंड 8 पेज भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। सो अब क्योंकि 10 मार्क्स के डिवाइड हो गए हैं क्वेश्चंस, तो आपको मिनिमम इस पेज से स्टार्ट करो, नेक्स्ट पेज पे जरूर लेके जाओ उसको, ठीक है, लास्ट मतलब वहां तक जो सेकंड पेज पे उसको आप एंड करो। अगर इफ यू हैव ए गुड स्पीड आप तीसरे पेज पे भी जा सकते हैं। समटाइम द शीट्स आर गिवन वेयर स्पेसिफिक वो मेंशन होता है, देन डिड अकॉर्डिंग टू दैट। हिमाचल में वहां पे शीट्स आप ले सकते हो, ठीक है, वहां पे कोई लिमिट्स नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस स्ट्रेटजी से चलना भी मिनिमम 1 और 2 पेज आप जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चंस लिख सको, ठीक है। और सेकंड आओ बेटा आप यस, देन फिर उसमें जब आपने बेटा वो 10 मार्क्स का 1 पेज सेकंड पेज, ठीक है। और बेटा थोड़ी सी मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूं, जब भी कोई व्हेन यू स्टार्ट एनी क्वेश्चंस, ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस आपको आता है,
तो आपको पता होगा भी ये कौन से चैप्टर में है, कौन से पार्ट के अंदर है. सपोज इट इज रिलेटेड टू द विद अरेस्ट, इट इज रिलेटेड विद द इन्वेस्टिगेशन पार्ट. ठीक है, ठीक है. तो आप यू हैव टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. यू हैव टू बी क्लियर. पहले इन्वेस्टिगेशन बताओ क्या होते हैं. ठीक है, फिर देन कम टू दैट पार्ट. फिर उससे उसने जो व्हाट द एग्जामिनर ने पूछा है, पहले 3-4 लाइन यू शुड बी रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन पार्ट. फिर आपने जो उसने पूछा है कम टू दैट पार्ट. ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो आंसर देना है. ठीक है, नो दीज आर द 3 सब्जेक्ट्स. लॉ के अंदर मैं आपकी एक क्लास कुछ जब आपका थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल डिस्कस द पेपर्स विथ यू. ठीक है, अभी पेपर्स अभी हुए हैं, तो वो पेपर्स वी विल डिस्कस इन द क्लास. एंड दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट टू द हु आर द फॉलोअर्स ऑफ ऑन YouTube. ठीक है, दे सब्सक्राइब अवर चैनल्स. दैट्स व्हाई बिकॉज वी विल आल्सो डिस्कस दैट पार्ट ऑन अवर YouTube चैनल, दैट इज ए ज्यूरिस्ट एकेडमी. ठीक है, जो अपना चैनल है. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आपने वो पेपर वी विल डिस्कस दैट पार्ट. वो हम पेपर डिस्कस करेंगे आपको कैसे अटेम्प्ट करना है. सो दिस इज द स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग. उसके बाद बेटा देन इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट दीज 200 मार्क्स देन इज योर इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज 150 मार्क्स. इसके अंदर ऐसे 100 marks, translations, Hindi to English 50 marks. So beta total 150 marks is your English, and Hindi is 100 marks. इस 100 मार्क्स के अंदर जो ट्रांसलेशंस है, ट्रांसलेशंस इंग्लिश टू हिंदी, इट्स 30 मार्क्स. ऐसे इन हिंदी 50 मार्क्स, और कंपोजिशंस जिसमें इडियम्स करेक्शन दैट इज 20 मार्क्स, और टोटल 100 मार्क्स. तो बेटा जो लैंग्वेज है, चाहे वो पंजाब हो गया, चाहे वो हरियाणा हो गया, ठीक है, चाहे वो जैसे हिमाचल, और ये फैक्ट है कि जो लैंग्वेज ही आप ए पर्सन बिकम ए जुडिशियल ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ ए लैंग्वेज. लैंग्वेज की इतनी इंपॉर्टेंस है. ठीक है, उसका रीजन क्या है? जैसे जो पंजाब से हैं, जहां हरियाणा है, जहां जिनकी तो इंग्लिश स्ट्रांग होगी, अच्छी स्ट्रांग होगी, ठीक है, वो लैंग्वेज में वीक होंगे. पंजाबी में, हिंदी में, उसमें वीक हो जाए. जिनकी हिंदी और पंजाबी बहुत अच्छी होती है, उनकी इंग्लिश वीक होती है. ठीक है, क्योंकि दे स्टडी देयर लैंग्वेज इन द रूरल पार्ट. ठीक है, वहां पे उन्होंने अपनी उस लैंग्वेज में मास्टरी. हाँ, अगर आपकी दोनों लैंग्वेज अच्छी है देन इट्स वेरी गुड. ठीक है, फिर आपका जो बेस है, इसलिए अपने लैंग्वेज पे उसको इग्नोर नहीं करना है, वही बेस बनाता है आपका. ठीक है, नो कम टू द सपोज ऐसे पार्ट. ऐसे 100 उसमें है, 50 उस मार्क्स में. ठीक है, पहले तो बेटा जो आप ऐसे चॉइस करते हो, नॉर्मली वो ऐसे चॉइस करो जिसका जो आपका फील्ड है. ठीक है, सपोज मैं आपको सपोज आई डिड माय ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स. ठीक है, मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की थी. तो आई हैव प्रिपेयर एट दैट टाइम प्रिपेयरिंग फॉर द IAS. तो हमारा इकोनॉमिक्स उसमें भी जो है जी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ता था. तो मेरी ये इच्छा होती थी भी कोई भी ऐसे इकोनॉमिक पॉइंट्स पे आएगा, आई विल अटेम्प्ट दैट. तो हमारे उस समय पॉपुलेशन आया था, सो जो नो प्रॉब्लम. ठीक है, जो अगर आपने ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी के अंदर की है, ठीक है, अगर आपने जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है,
ठीक है, तो आप उसका ऐसे याद करो। इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग, सपोज यू आर ए वेरी गुड स्ट्रॉन्ग इन हिस्ट्री, ठीक है, तो आपको सपोज ऐसे आ जाता है द पोजीशन ऑफ ए वुमेन इन इंडिया, ठीक है, तो क्योंकि इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग इन द हिस्ट्री, तो आप ऐसे जो लिख सकते हो वो दूसरों से बेटर लिख सकते हो, क्योंकि यू विल स्टार्ट ऐसे विद द ऋग्वेदा, ठीक है, आप उसमें जो वुमेन थी उस समय, आप यू कैन मेंशन दैट वी एट दैट टाइम इन द ऋग्वेदिक टाइम the status of the woman was very high because even the Lok Mudra, ठीक है, has written a verses of Rigveda. उस समय जो वुमेन्स थी उन्होंने ऋग्वेदा के भी वर्सेस लिखे हुए हैं. इट मीन्स द एजुकेशन स्टैंडर्ड एट द टाइम ऋग्वेदिक पीरियड्स. अगर आपको हिस्ट्री की नॉलेज है, यू कैन राइट ऑन द हिस्ट्री, तो इसी ऐसे के अंदर देन यू विल कम दैट आफ्टर दैट द पोजीशन वाज डिक्लाइंड इन द लेटर वैदिक पीरियड्स के अंदर. तो आप कह सकते हो द इंसिडेंट ऑफ द्रौपदी विच इक्वलाइज विद द प्रॉपर्टी. द्रौपदी को एक प्रॉपर्टी के बेस पे इक्वल कर दिया उसको, ठीक है. ओनली इफ यू कोरिलेट दैट, देन फिर इवन देन यू कैन डिस्कस द पीरियड ऑफ मौर्यस, ठीक है. जब हम मौर्यस के पीरियड डिस्कस करते हैं, then even the status of women at that time is even, it is a very good. After that, when the invasion of the Muslims came, okay, then you can discuss the Muslim period in that. Be at that time the position of the woman was declined. There was a parda system, okay. There was you can say sati pratha. This was developed. So then we come to the British period. तो अगर आप लिख सकते हो कि लॉर्ड बेंटिक ने 1829 के अंदर दिस सती प्रथा हैज बीन अबॉलिश्ड, ठीक है. एंड देन विडो रीमैरिज वाज स्टार्ट, देन स्टेटस ऑफ द वुमेन वाज इंक्रीज्ड, ठीक है. सो देन यू कैन कम टू द आफ्टर दैट इवन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल्स, देन आफ्टर द 1947 even now the positions of a, you can say, is even very good than others. How can you can give the example? Even you can give example of the previous Punjab Judicial Service exam, ठीक है. Although now the topper is from our academy, ठीक है, Sangam Kaushal, he is posted at Firozpur. Out of 20 I think in general category, 16 are the women. It show that there is a status of the woman was rise. आप कोई भी एग्जाम्पल ऐसे कोरिलेट कर सकते हो जो प्रूफ है भी. अगर 18 में से सिलेक्शंस में 16 गर्ल्स हो रही हैं, इट मींस द स्टेटस ऑफ द वुमेन. दिस इज द प्रूफ, ठीक है. सो इस तरीके से आपका जो ऐसे आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, यू हैव टू राइट हिंदी में भी, इंग्लिश में, ठीक है. आपने वो लिखना है. और नॉर्मली ऐसे जो है हम स्टार्ट विद द कोटेशंस. आपको अच्छी कोटेशंस आनी चाहिए, ठीक है. आपका जो इंप्रेशंस है वो कोटेशंस पे. और इसी जैसे जब हम सपोज हम व्हेन वी ऐसे स्टार्ट करते हैं वुमेन के ऊपर, ठीक है. अगर हम पंजाबी में स्टार्ट करते हैं, त्यों क्यों मंदा आखिए जितने जमे राजन, ठीक है. सो गुरु नानक देव जी, ठीक है. तो इनकी फिलॉसफी आप इन द पंजाबी और हिंदी में आप लिख सकते हो, क्योंकि हमारे एरिया दिस हिमाचल, दिल्ली, तो वी हैव टू बी. हमने जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, वेयर द वुमेन इज रिस्पेक्टेड दैट इज ए हेवन, ठीक है. सो इस तरीके से बाय मेकिंग दीज कोटेशन आपको लैंग्वेज की, क्योंकि लॉ के अंदर ना समटाइम इक्वल मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं, सभी 120, 120, 130, ठीक है. और फिर आपको लैंग्वेज ही वो करवाते हैं. तो लैंग्वेज जो है आपको ऐसे राइटिंग, ग्रामर, हिंदी, और सम टाइम क्या होता है कई लोग स्पेशली हु बिलोंग्स टू द पंजाब, उनकी हिंदी और वीक होती है, ठीक है. उनकी हिंदी आप पढ़ोगे, वो आपको पढ़ने से लगेगा ये पंजाबी लिखा है, बस इसने वो स्क्रिप्ट चेंज किया है, बाकी तो जो है पंजाबी है, ठीक है. तो आपने वो हिंदी के कुछ वर्ड्स लिखने वाले, वो आप उस वर्ड्स इंट्रोड्यूस करो अपने एसे के अंदर. और कहीं ये ना हो एग्जामिनर, समटाइम द एग्जामिनर आर बायस
जब वो हिमाचल या राजस्थान या उसके पेपर देखते हैं उसको पता लग जाता है भी ये तो पंजाब से है, जो पंजाबी के वर्ड हिंदी में लिखी जाते हैं, ठीक है। वो कई बार वो इतने बायस होते हैं वो मार्क्स भी नहीं देते। तो आपके थोड़ा सा लैंग्वेज पे आपने कुछ वर्ड्स ही इंट्रोड्यूस आपने करने हैं, उनकी जगह अच्छे वर्ड्स वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप इफ यू वांट टू अपीयर इन द डिफरेंट स्टेट्स, को दिल्ली भी होगा और कहते हैं यूपी में भी हो सकता है वैकेंसी मोर देन 500 साइन, तो इसलिए वहां उस पे आप वो रखो, ठीक है। सो दिस पार्ट इज योर लैंग्वेज पार्ट। देन बेटा लास्ट इज इंटरव्यू मार्क्स 150। सर ये कॉम्पोजिशन में क्या कुछ होगा? किसमें बेटा? ये हिंदी का जो 20 मार्क्स है, इसमें इडियम्स करेक्शंस ये बात मुहावरे वगैरह। मुहावरे सर ये कितने दिन में होगी मेन के एग्जाम? ये मेन के नॉर्मली 3 दिन में हो जाते हैं, विद इन 3 डेज, ठीक है। हाँ, तो जैसे पंजाब में भी तो आपको एक बड़ी स्ट्रेटजी मेन के अंदर रखनी पड़ती है, ठीक है। कैसे? क्योंकि आपने तीनों एग्जाम इकट्ठे देने हैं और मॉर्निंग इवनिंग नेक्स्ट डे लास्ट पेपर। तो जो हम व्हाट वी अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी, हम ये करते थे जो पहले हम 3-4 दिन पहले जो लास्ट वाले पेपर्स हैं, ठीक है, उनकी आप रिवीजन कर दो लास्ट पेपर्स। योर नोट शुड बी लाइक दिस। पहले हम डिटेल नोट्स बनाते हैं, फिर उसको ब्रीफ नोट्स बनाते हैं, ठीक है। फिर हम ऐसे नोट्स बना लेते हैं जो सिर्फ जस्ट लाइक जिसको पर्ची बोलते हैं, ठीक है। एक स्मॉल पेपर पे हम बस में जा रहे हैं, उस समय बस में जाते थे, बस में हम उसको रिवाइज करते थे, ठीक है। सो यू हैव टू मेक दैट टाइप ऑफ नोट्स which you can even revise that। और फिर तो जो फर्स्ट पेपर्स हमारे होते हैं 3 पेपर जो हुए वो हमने, क्योंकि हमने 2-3 डेज पहले उसकी करनी है। और फिर नॉर्मली जो जैसे सेकंड डेज होता था एग्जाम का, आज हो गए कल, तो जो कल वाला एग्जाम है तो उस दिन हम रात को सोते भी, ठीक है। दैट इज द लास्ट। चलो उसके बाद फिर हम आराम से we will take the rest। So your strategy should be your own, ठीक है। उसमें कुछ चीजें जो आपने देखनी है regarding your I'm discussing your strategy। Suppose आप ये चेक करो, ठीक है, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो किस टाइम बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया भी किसी की जो कंसंट्रेशन है वो मॉर्निंग में उठ के बनती है, भी मैं तो 4 बजे 2 बजे 3 बजे, ठीक है। समटाइम किसी जो मेरी खुद की कंसंट्रेशन थी जब सूरज जैसे कहते हैं सेट हो गया, उसके बाद जब तक मैं डिनर ना कर लूं 9 up to 9 तक, 6:30 अराउंड 6:30 to 9 तक, वो मेरा सबसे अच्छा पीरियड होता है कंसंट्रेशन का। तो वो मैं मिस नहीं करता। तो उस समय मैं कहीं भी ना कोई काम नहीं करना, वो तो टाइम मैंने लगाना ही लगाना। तो इसलिए जो टाइम आपका कंसंट्रेशन आपकी अच्छी बनती हो, कहीं वही होता भी धूप में बैठ के 10 बजे के बाद 3 घंटे मेरे बहुत धूप में अच्छे लगते, तो आप वो लगाओ, ठीक है ना। वो आपने मिस नहीं करना, ठीक है। उसको आपने अच्छी तरह यूज करना है। और रिगार्डिंग प्रीलिम की जो स्ट्रेटजी है वो आपने लॉ मेन पॉइंट ऑफ व्यू से करो, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम टेस्ट भी लेंगे आपके, ठीक है। वो टेस्ट जो है करते रहो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 2nd of January इवनिंग बैच, और जिसमें हम एविडेंस और आईपीसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करें, ठीक है। सो तीनों सब्जेक्ट जो तुम्हें हिमाचल के अंदर हिट करेंगे। मॉर्निंग वी हैव ऑलरेडी, हमारा जो मॉर्निंग का बैच है वो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है अपना, जिसमें वी आर सीआरपीसी और मुस्लिम लॉ है। मुस्लिम लॉ इज नॉट पार्ट ऑफ ए पंजाब हरियाणा, बट नॉट ए हिमाचल के अंदर वो वाला पार्ट नहीं, ठीक है। सर अभी क्रिसमस के कारण बंद तो नहीं रहेंगे, हमारा चलेगा सर? क्रिसमस का तो नहीं बेटा, वो विल डिस्कस दैट, ठीक है। we will normally off on the 1st of this January, उससे देख लेंगे 1st January, और we will discuss on that part, ठीक है। So बेटा this is strategy। कोई आपने इस पे क्वेश्चंस पूछना हो? कॉन्स्टिट्यूशन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है हिमाचल के अंदर, ठीक है। दैट्स वाई हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन था अपना वो हमने पहले करा दिया था, ठीक है, इन द जून। दैट्स वाई हमने, क्योंकि अब हम जो कॉन्स्टिट्यूशन पे अभी हमारा टाइम वेस्ट होएगा अगर अब हम कॉन्स्टिट्यूशन इस समय स्टार्ट करते थे,
ठीक है। वी विल स्टार्ट, जब अपना पंजाब में भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रीलिम और मेन नहीं है तो हम उसको बाद में स्टार्ट करेंगे। पंजाब में भी नहीं है, पंजाब में प्रीलिम और मेन में नहीं है, ठीक है, बट इट इज ए पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू पार्ट, और प्रीलिम में कुछ क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशंस के आते हैं। और सर उसमें सिलेबस के ऊपर लिखा होता है कि द स्टूडेंट शुड हैव नॉलेज रिगार्डिंग नेशनल हिस्ट्री ऑफ द स्टेट, जिस भी स्टेट का दे रहे हैं, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एंड लीगल हिस्ट्री। बेटा ऐसे जिसमें लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है, इसमें हिमाचल के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन या कहीं लिखा नहीं है। वी हैव सीन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस, मैंने आपको उसमें स्पेसिफिकली बता दिया भी इतने इतने क्वेश्चन इस हिस्से आते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस टेबल में नहीं मेंशन होता, जैसे सिलेबस का जो टेबल, हाँ, जो सिलेबस का टेबल है उसमें मेंशन नहीं है, हाँ, उसमें मेंशंस नहीं है। उन्होंने स्पेसिफिक ये दिया भी ये सब्जेक्ट्स हैं इस मार्क्स के होंगे, ठीक है। सो बेटा दिस वाज द स्ट्रेटजी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, और इसमें सो बेटा सबसे आपने एक चीज ध्यान रखनी है, आपको अपनी हार्ड वर्क, सिंसियर अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, आपकी जो हार्ड वर्क है वही आपको सक्सीड करे, ठीक है। कई स्टूडेंट्स, इवन जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो भी बच्चों के साथ कहते हैं मैं तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो 2 घंटे पढ़ता था, मैं तो 3 घंटे पढ़ता था। नहीं बेटा, ठीक है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो बिना पढ़े पास हुआ है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आपको मिनिमम 8 आवर्स तो डेली स्टडी पे, जो आप एकेडमी में, उसके अलावा आपको करनी पड़ेगी तैयारी, मिनिमम 8 आवर्स, ठीक है। तो और वो जो है पूरे कंस्ट्रक्टिव, पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो लगाने चाहिए, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि कई कहते हैं मैं तो सिर्फ 2 आवर्स 3 आवर्स पढ़ा हूं, ये वो, दे आर टेलिंग अ लाई विद यू, ठीक है। क्योंकि जब हम इवन सम पर्संस मैरिज हो जाती है, मैरिज के बाद फिर स्टूडेंट्स कहते हैं भी अब मैरिज होगी। बेटा हमने भी मैरिज के बाद क्लियर किया था, हम मॉर्निंग में आज 2 AM स्टार्ट कर देते अपनी स्टडी, 2 to 9, 7 घंटे हमने मॉर्निंग में पढ़ते थे, 7 घंटे हो गए। उसके बाद आप कोर्ट में जाओ, उस समय हम यंग थे, कोर्ट जाते थे, वहां पे हमने कुछ नहीं करना, 1-2 अपने केस की डेट्स ली, जस्ट वहां पे चेस खेलना है, बार में चाय पीनी है, अपने यंग एडवोकेट्स के साथ हा करनी है, फ्रेश होना है आपने, वो 2 घंटे आप फ्रेश होके कम टू द हाउस अगेन स्टार्ट, ठीक है। सो योर स्ट्रेटेजी शुड बी दैट भी मिनिमम आपको 8 आवर्स तो लगाने ही, ठीक है। दिस वाज योर स्ट्रेटेजी। देन वी विल टेक ए नेक्स्ट लेक्चर ऑन दिस। हम आपको जो उस समय हम पेपर वी विल डिस्कस, हम एग्जाम के कैसे पेपर लिखना है, किस तरीके से बेटा करना है। दिस वाज द जनरल स्ट्रेटेजी। आपने बेयर एक्ट्स जो है, उसके बेयर एक्ट्स में से आपको अच्छी तरह करना है प्रीलिम पॉइंट ऑफ, ठीक है। आपको कौन सी सेक्शन, किस सेक्शंस में क्या है, क्योंकि अब जो ये क्वेश्चंस हैं ये नॉर्मली क्योंकि ऐसे ना रॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं, अगर ये किसी उस पे पूछ लेते हैं तो आप ये फैक्ट्स पे पूछते हैं डायरेक्ट भी कौन सी सेक्शंस में कौन सा केस क्या है, उस पे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तुम्हें प्रीलिम के, तो आपको उस तरीके से बेटा स्टडी करनी है। और कोई भी इट्स बिकॉज अपना नंबर बेटा मैं बिकॉज इट्स ऑन YouTube, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग माय नंबर 9814084273। आई एम अगेन रिपीटिंग इट 9814084273। एनी स्टूडेंट फ्रॉम एनीवेयर, कोई भी आप मुझे पूछ सकते हैं कैसे तैयारी करनी है, कैसे, अगर आप सपोज सम पर्संस आर इवन cannot afford to come into Chandigarh and join the offline classes, ठीक है। जैसे हमने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर दी और 2 जनवरी को we will start evening batch also। तो कुछ बच्चे जो फाइनेंशियली नहीं है, चंडीगढ़ नहीं भी आ सकते, ठीक है, कोई भी बेटा अपने क्वेश्चंस पूछना हो किसी से रिलेटेड, ठीक है, मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। सर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਾਲਾ तो ਭਾਗ आप ओके मैं बेटा नोट करना फिर
सर YouTube पे और Instagram पे सेम है दोनों? हाँ, उसमें ये हम YouTube पे लोड कर देंगे इसको। आप कल कह रहे थे इंस्टा पे होगा ना YouTube पे भी आप देख सकते हो, जो उस पे भी, क्योंकि ऐसे ना तीनों एक दिन में इंस्टा पे